Hi friends, welcome to English Study Point. Today here in this video lecture, I am going to discuss with you about a literary term that is montage. This particular term used in the context of both film as well as postmodern literature, and montage, this term suggests different kinds of meaning. It depends upon the context in which it is used. When it is used in the context of film literature, it suggests something different meaning, and also when it is used in the context of postmodern literature, it also suggests another different kind of meaning. And now it is very important for you to know definition of montage. Suppose, have you ever seen directors who are involved in the filmmaking process? So while they are engaging themselves in the filmmaking process, at that point of time they try to collect so many dissimilar images, which we can also attribute those dissimilar images as a kind of shots. So this compilation of so many shots all together in order to make filmmaking process complete, this is called as montage. So what director does here is he tries to pick those dissimilar images from many dissimilar images. He tries to pick up essential dissimilar images, and he fits that particular images in a sequence, in a logical order, which can be associated from each other, and then he tries to compile all these dissimilar images all together in order to make that process complete. This montage can also be called as film editing process, and this film editing process can only be possible with the advent of film technology. And now it is very important for you to know why montages are used in this filmmaking process, because by doing this a director wants to ensure continuity through his films. So by combining so many images all together, he wants to ensure a kind of continuity, and as well as he wants to also highlight the contrast of presenting so many dissimilar images in that particular film while engaging himself in the process of film making. So two things are essential here. He uses montage first to ensure continuity, and then another reason is that he wants to highlight contrast of so many images, dissimilar images, which are related to each other. And now I am explaining this term in the context of postmodern literature. So what writer does by using montage is he tries to first of all combine or collect so many different kinds of dissimilar images, and by combining or compiling all those dissimilar images, he put them all together to create an interesting storyline. So this is called as montage. And also it is very important for you to know why writers uses montage, this type of style in their works, because he wants to make readers take initiative by their own side to create their own storyline, instead of depending on what writer is trying to say through his story or say through his text. So he wants to make pressure on the readers to create their own storyline, and readers are also very hopeful as well as sanguine, because he tries to means writer here tries to present so many disparate, or you can say dissimilar images, that would reduce the same meaning as the author intends to say convey. And it makes continuous pressure upon the reader who is reading his work to create or to interpret those texts of reader, and interpret that particular text upon the basis of his experience. So this is the main reason, and writer, via using montage in his works, he tries to assist the imagination of the readers also while presenting montage kind of images in his works. And also he, at the same time, writer is trying to, by making montage images present in his work, he is at the same time exploiting readers imagination or capability of their imagination, because readers flow of reading breaks down because they are not able to comprehend such kind of dissimilar images which is present in the form of montage in a writer's work. Now let us understand about this montage.
This term derived from the French verb monter which means to assemble. Yes, montage का मतलब ये एक फ्रेंच वर्ब है जिसका मतलब मॉन्टर होता है. इसमें हम असेंबल करते हैं बहुत सारी डिसिमिलर इमेजेस को एक साथ. एंड हमेशा अगर इसको फिल्म लिटरेचर की सेंस में यूज़ किया जाए इस टर्म को, तो डायरेक्टर हमेशा अलग अलग इमेजेस को, बहुत सारे शॉट्स को वो एक साथ कलेक्ट कर लेता है. फिर बाद में वो क्या करता है, उनमें से इस चीज़ को देखता है कि किस चीज़ इस पर्टिकुलर शॉट को फिल्म में लेकर आना चाहिए, यानी मेन फिल्म को बनाते समय लेकर आना चाहिए. तो वो बहुत सारे शॉट्स को कलेक्ट करता है एंड फिर वो बाद में उन्हें असेंबल करने की कोशिश करता है. एंड जिनमें से जो रेलेवेंट नहीं होते हैं वो उन्हें हटा देता है मेन फिल्म मेकिंग के प्रोसेस से. सो दिस टर्म डराइव फ्रॉम द फ्रेंच वर्ब मॉन्टर विच मीन्स टू असेंबल. एंड अगर इस टर्म को पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर की सेंस में यूज़ किया जाए तो पोस्ट मॉडर्न राइटर क्या करते हैं, बहुत सारे डिसिमिलर इमेजेस को एक साथ पहले वो कलेक्ट करते हैं. देन वो कलेक्ट करने के बाद उनको छांटने की कोशिश करते हैं. देन उन्हें जो सही लगता है, अप्रोप्रिएट लगता है, उन्हें सीक्वेंस ऑर्डर में लगाने की कोशिश करते हैं. तो वो एक तरीके से आइडिया का फॉर्मेशन हो जाता है जो एक दूसरे के साथ रिलेट करता हो. एंड फिर उसे कंपाइल कर देते हैं एक साथ. सो दिस कंपाइलेशन इज कॉल्ड एज montage. देन सर्गाई आइंस्टाइन वॉज अ सोवियत फिल्म डायरेक्टर एंड फिल्म थ्योरिस्ट. इस पर्टिकुलर टर्म montage को कॉइन किया था सर्गाई आइंस्टाइन ने, जो कि एक सोवियत फिल्म डायरेक्टर और फिल्म थ्योरिस्ट थे. ही इज़ बेस्ट नोन फॉर हिज पायोनियरिंग वर्क इन फिल्म थ्योरी एंड हिज यूज़ ऑफ montage. तो ये montages का बहुत ज़्यादा यूज़ किया करते थे सर्गाई आइंस्टाइन. इट इज़ द एडिटिंग टेक्निक ऑफ असेंबलिंग सेपरेट पीसेज ऑफ थीमेटिकली रिलेटेड फिल्म. तो मैंने अभी आपको लेक्चर की शुरुआत में बताया कि जितने भी सेपरेट इमेजेस होती है उन्हें एक साथ असेंबल करना, और असेंबल भी बिल्कुल सीक्वेंस वे में, यानी ऐसी इमेजेस को जो एक दूसरे से रिलेट करती हो. तो इसी सेंस में लिखा है, इट इज़ द एडिटिंग टेक्निक ऑफ असेंबलिंग सेपरेट पीसेज ऑफ थीमेटिकली रिलेटेड फिल्म एंड पुटिंग देम टुगेदर इनटू अ सीक्वेंस. एंड येस, अगर हम उसे फिल्म को, यानी फिल्म के अलग अलग शॉट्स को कलेक्ट कर रहे हैं, तो हमारी ही ड्यूटी बनती है उन्हें सीक्वेंस में पुट करना, ताकि आइडियाज़ एक दूसरे से कोरिलेट कर पाए पूरे उस फिल्म मेकिंग प्रोसेस में. एंड ये राइटर भी, पोस्ट मॉडर्न राइटर भी अलग अलग इमेजेस को कलेक्ट करता है. देन उसे कंपाइल भी करता है या फिर कंबाइन करता है. एंड फिर वो एंड में एक अच्छी स्टोरी क्रिएट करने की कोशिश करता है. इट ऑल्सो मीन्स टू एसोशिएट थिंग्स विद ईच अदर. येस, हम इसके थ्रू अगर कंपाइल करेंगे तो कहीं ना कहीं उन इमेजेस को अगर कंपाइल कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं, तो आइडियाज़ का भी एसोसिएशन हो पाएगा. तभी वो सही तरीके से, सीक्वेंस तरीके से, उसका अगर सीक्वेंशियल वे में उसे सेट किया जाएगा, ऑर्गेनाइज किया जाएगा, तो एक तरीके से एक लॉजिकल कोहेरेंस सेटअप होकर आ पाएगा. इससे क्या होगा, जितने भी ऑडियंस उस फिल्म को देख रही है वो अंडरस्टैंड कर पाएगी सीक्वेंशियल वे में कि यस, इस टाइप के इमेजेस को बिल्कुल सही तरीके से प्लेस करने की, पोजीशन करने की कोशिश की है डायरेक्टर ने. देन with the advent of film technology, montage became the term in French to denote the process of film editing. जैसे कि मैंने लेक्चर की शुरुआत में भी कहा था कि montage क्या है, एक तरीके का फिल्म एडिटिंग प्रोसेस है जिसके थ्रू एंड ये चीज़ फिल्म एडिटिंग कैसे पॉसिबल हो पाई, क्योंकि हमारी इस फिल्म टेक्नोलॉजी में बहुत सारी इनोवेशंस हुई थी जिसकी वजह से ये पॉसिबल हो पाया कि हमारी फिल्म की एडिटिंग हो सकती है. देन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फिल्म इट रेफर्स टू द टेक्निक ऑफ कंबाइनिंग डिस्पैरेट का मतलब होता है डिसिमिलर इमेजेस को कंबाइन करना, और वो भी लॉजिकल और साथ ही साथ सीक्वेंशियल वे में, यानी सीक्वेंस इस तरीके का हो ताकि एक दूसरे से लॉजिक बैठ सके चीज़ों का. और एलिमेंट्स टू फॉर्म अ कंपोजिट वर्क. इसके थ्रू कंपोजिट वर्क, यानी अगर हम बहुत सारे, अगर फिल्म के उसमें ही कॉन्टेक्स्ट में बात कर लेते हैं, तो डायरेक्टर क्या करता है, बहुत सारी शॉट्स को कलेक्ट करता है. एंड शॉट्स को कलेक्ट करने के बाद वो कंपाइल करता है, कंबाइन करता है, एंड उसके बाद उसका जो है पूरी
एंड प्रोडक्ट ये निकल कर आता है कि इसके थ्रू फिल्म का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो पाता है। देन अगर पोस्ट मॉडर्न राइटर की कॉन्टेक्स्ट में बात की जाए तो राइटर क्या करता है, बहुत सारे डिसिमिलर इमेजेस को एक साथ इकट्ठा कर लेगा एंड देन फिर वो उनमें से कुछ चीज़ों को पिकअप ऐसी करेगा जो कि उस टेक्स्ट के लिए इम्पॉर्टेंट हो एंड फिर कंबाइन करने की कोशिश करेगा। देन उसे सीक्वेंशियल ऑर्डर में अरेंज करेगा एंड फिर लास्ट में कंबाइन या फिर कंपाइल करने की कोशिश करेगा। देन इससे एक कंपोजिट वर्क प्रोड्यूस होकर आ पाएगा। देन मोन्टाज इज़ रिलेटेड टू द प्रैक्टिस ऑफ कोलाज, हाउ एवर इट डिफर्स फ्रॉम द कोलाज। यस, कि मोन्टाज लगभग यानी हम कह सकते हैं सिमिलर है कोलाज से, बट एग्जैक्टली सिमिलर नहीं है, क्योंकि मोन्टाज को क्रिएट करते समय बहुत सारे जक्स्टापोजिशंस होते हैं, क्योंकि इसमें हम बहुत सारी डिसिमिलर इमेजेस को एक साथ सीक्वेंशियल ऑर्डर में जो कि लॉजिकल हो उसे इस तरीके से अरेंज करने की कोशिश करते हैं, भले ही वो फिल्म हो या फिर भले ही वो किसी वर्क के अंदर हम इमेजेस को मेंशन करना चाहते हो तो भी। सो मोन्टाज इज़ रिलेटेड टू द प्रैक्टिस ऑफ कोलाज, हाउ एवर इट डिफर्स फ्रॉम द कोलाज, क्योंकि इसमें हम वी आर ट्राइंग टू मेंशन सम डिसिमिलर इमेजेस बाय द यूज़ ऑफ मोन्टाज। देन in literature it means assembling different kinds of related images. yes, हम इस लिटरेचर में मैंने अभी बताया था कि लिटरेचर में मोन्टाज का मतलब अलग होता है। इसमें क्या होता है, हम असेंबल तो करते हैं, तो असेंबल उन चीज़ों को करते हैं, उन रिलेटेड इमेजेस को करते हैं जो एक दूसरे से एसोसिएट करती हो, यानी किसी का मेल बैठता हो, एंड कंपाइलिंग देम ऑल टुगेदर टू नरेट अ कंप्लीट स्टोरी, एंड इन्हें कंपाइल किया जाता है एंड फिर एक स्टोरी को कंप्लीट वे में नरेट किया जाता है। देन इट इज़ अ पोस्ट मॉडर्न टर्म इन लिटरेरी थियोरी एंड इज़ मोस्टली यूज्ड इन मूवीज़, डॉक्यूमेंट्रीज़ एंड पोस्ट मॉडर्न नॉवेल्स। तो मोन्टाजेस एक तरीके से शॉर्ट्स है। शॉर्ट्स अगर फिल्म मेकिंग कॉन्टेक्स्ट में बात की जाए इसका, सो अगर मोन्टाज इस टर्म का यूज़ फिल्म मेकिंग प्रोसेस में किया जाए तो हम शॉर्ट्स कहेंगे, क्योंकि हम डायरेक्टर फिल्म मेकिंग प्रोसेस में जब इन्वॉल्व हो जाता है तो वो बहुत सारे शॉर्ट्स को कलेक्ट करता है एंड देन शॉर्ट्स को कलेक्ट करने के बाद सीक्वेंशियल वे में ऑर्गेनाइज करता है, देन कंबाइन या फिर कंपाइल करता है। सो मोन्टाजेस आर अ काइंड ऑफ शॉर्ट्स अगर पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर में कहा जाए तो डिसिमिलर इमेजेस को हम कंबाइन करने की कोशिश करते हैं, एक साथ लाने की कोशिश करते हैं एंड इसके थ्रू स्टोरी लाइन को क्रिएट किया जाता है। दे हेल्प इन इस्टेब्लिशिंग कॉन्टीन्यूटी। यस, इसके थ्रू कॉन्टीन्यूटी रहती है कि आगे क्या होता जा रहा है। फिल्म में अगर बात की जाए तो ऑडियंस की कॉन्टीन्यूटी रह पाती है, वो रिटेंशन दे पाते हैं कि उनको क्यूरियोसिटी होती है कि आगे क्या होता जा रहा है। वो इसके थ्रू पॉसिबल हो पाता है, मोन्टाज के थ्रू, क्योंकि उन्हें इमेजेस एक के बाद एक दिखाई देती है सीक्वेंशियल ऑर्डर में, और वो भी उनका लॉजिक भी दिखने लगता है कि यस, अगर सीक्वेंशियल ऑर्डर में भी चीज़ों को अरेंज किया गया है तो कहीं ना कहीं इन सीक्वेंशियल चीज़ों को अरेंज करते समय भी इनके बीच में लॉजिक बैठ रहा है। देन एट द सेम टाइम प्रोवाइडिंग कॉन्ट्रास्ट भी नज़र आता है, क्योंकि इसके अंदर जब भी हम मोन्टाजेस का यूज़ करते हैं तो बहुत अलग अलग इमेजेस को कंपाइल करने की कोशिश करते हैं। तो वो अलग अलग इमेजेस क्या सजेस्ट करती है, कॉन्ट्रास्ट को। देन जिससे कि ऑडियंस ये जान पाए कि अलग अलग इमेजेस का यूज़ करके यहाँ पर डिफरेंट इश्यूज़ को अलग अलग टाइम पर हाईलाइट करने की कोशिश की गई है फिल्म के थ्रू या फिर किसी वर्क के थ्रू। देन जैसे कि एग्जांपल है, if I give this general example, so for example a character's whole life, if I am talking about a character's whole life story, that could be told by showing a long succession of images starting from baby's photos and ending with the फोटो ऑफ द करेक्टर एज एन ओल्ड मैन। सो यहाँ पर अगर मैं किसी बच्चे की लाइफ स्टोरी के बारे में बता रही हूँ मोन्टाजेस का यूज़ करके, तो मैं उसकी पूरी लाइफ स्टोरी के बारे में कैसे बताऊँगी, मैं उसके बचपन से लेकर कि उसकी फ़ोटोज़ बचपन की क्या क्या रही, उसकी क्या क्या मेमोरीज़ रही, क्या क्या इवेंट्स
उसने अटेंड किए अपने बचपन से लेकर बड़े होने तक, और साथ ही साथ फिर उसकी जब वो बुढ़ापा आया, इन सभी को मैं, इन सारी इमेजेस को मैं एक साथ कंपाइल करने की कोशिश करूँगी। इस तरीके से एक जने की होल लाइफ स्टोरी के बारे में हम जान सकते हैं मोन्टाजेस का यूज़ करके। सो एंड अगर लिटरेचर में मोन्टाजेस के इस स्टाइल को बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे राइटर्स ने अडॉप्ट करने की कोशिश की है, जैसे कि टी.एस. एलियट ने अपने वर्क वेस्टलैंड में मोन्टाजेस का यूज़ किया है। एंड दिस वर्क कंटेन्स रेफरेंसेस टू क्लासिकल लिटरेचर। दिस वर्क, दैट इज़ T.S. Eliot's Wasteland, this work contains references to classical literature, and this poetry, its real structure is built out of a sequence of discrete images, those kind of images which are very dissimilar from each other. Each image stands on its own, but they the whole work together. They This images work together to tell a general story. So here you can see presence of montages that is used by T.S. Eliot in his poetry, that is Wasteland. And also there is another example where there is a use of montage, and that work is by Herman Melville. That work is Moby Dick. Here in this novel, the there is surrounding of long sea voyage in pursuit of a mysterious white whale, and Melville here describes various kinds of events that takes place on board the ship. The little movements in many ways stands on their own. So there is description of so many dissimilar kinds of images while description or presentation of this kind of work, that is Moby Dick. How many kind of hardship that these sailors undertake in pursuit of a mysterious white whale. So there is description of so many dissimilar images which suggest there is a use of montage by Herman Melville in his work Moby Dick. So here with this particular video lecture ends here. Hope this video lecture will help you in your UGC NET English literature exams. Thank you.